Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss stereoisomerism for coordination number 6 for octahedral geometry. So the first case, coordination number 6, all ligands are monodentate having no chiral center. So basically no chiral center means ligand itself is not optically active. So we are discussing optical activity with respect to central atom, not with respect to ligand. So all ligands are monodentate. As we have seen in the last lecture, all monodentate ligands are basically represented by small abcd, this point, and bidentate ligands are represented by AA if it is symmetric, and bidentate ligand can also be represented by AB if it is asymmetric, and central atom is denoted by M. Some examples are also given here. Ethylene diamine oxalato, they are the symmetric bidentate ligand. Dimethyl glycinato, glycinate, they are basically asymmetric bidentate ligands. And for monodentate, Cl minus, any halides, ammonia, carbonyls, Cn minus, they are all are monodentate ligands. So see, in first case where all the ligands are monodentate, so formula can be MS6, that means all 6 ligands are monodentate and they are same. There is only one possibility, one possible structure is there, one geometrical isomer is there, which is basically which is not optically active because it has plane of symmetry. वो सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा दे विल नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. सो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा. वी गेट प्लेन ऑफ सिमेट्री. सेकेंड केस MA5B, it has one geometrical isomer and 0 enantiomeric pair. There is no optical isomers, so again it also has plane of symmetry. Third one MA4B2. So MA4B2, it can have two kind of geometrical isomers. See here, for this case MA4B2, if we draw a structure in this manner, so we can put B in the transposition. First case B at 180 degree, and we can have A in this position. So the plane in which all A are present, there is plane of symmetry. ऊपर भी B, नीचे भी plane of symmetry मिल गया, तो ये optically active नहीं होगा. Second possibility, we can exchange position of 1A and 1B. So we can have such kind of position. हमने यहाँ पे A रखा, यहाँ पे B रख दिया. Second geometrical isomer. In this case, B is present at 90 degrees. So with respect to B, it is cis form. And it is also optically inactive. यदि हम इसमें plane of symmetry देखने जाएंगे, so this plane could be the plane of symmetry, the plane passing from this four ligand. So basically this plane is plane of symmetry. ये A और ये A mirroring में जा रहे हैं, superimposable. So this plane, which is vertical plane, diagonal vertical plane, that is a plane of symmetry. In this table, first column is given possible number of geometrical isomers, second column is given possible number of enantiomeric pair, there is how many of them geometrical isomers are optically active, and the third column is the total number of stereoisomers, that is geometrical isomers in enantiomeric pair. So addition of second and third column will be the fourth column. So these are the possibility of the possible different formula of the complex compound, their possible geometric structure, and how many of them are optically active, then total number. We will discuss some cases out of this at the end. So ये कुछ टेबल है जिसमें हमें एक रफ आइडिया पता लगेगा किसके कितने केस है. Again, you don't need to memorize this table, but you need to understand how to draw different types of geometrical isomers and how to find is there any plane of symmetry or it is not there. So हमें plane of symmetry पता लगना चाहिए कहाँ पर है कहाँ पे नहीं है. Like the last case MABCDEF, we can have 15 possible geometrical isomers and all will be optically active as there is no plane of symmetry. सारे के सारे ligands इसमें different होंगे. So यहाँ पे कोई भी plane of symmetry नहीं आएगा. Second case,
when ligands are bidentate, symmetrical, monodentate, so कुछ bidentate हो सकते हैं और basically it will be a combination of bidentate and monodentate. हो सकता है सारे के सारे bidentate हो जाए, हो सकता है bidentate का combination हो monodentate के साथ. Definitely they do not have any chiral center, they are not optically active, so these are the possibility. MAA3, all three ligands are symmetrical and bidentate. So two are bidentate and two are monodentate. Two bidentate, two monodentate of different types. So these are the possible formula, 8 different possible formula, and for this we can have this geometrical isomers and optical isomers, enantiomeric pair and their addition total. अगेन इसमें से भी हम कुछ केस डिस्कस करेंगे. जस्ट एक टेबल है ताकि जब भी हम ड्रॉ करने जाएं हमें एग्जैक्टली पता लगे कि हमने जितने भी नंबर ड्रॉ किए वो मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. यू डोंट नीड टू मेमोराइज दिस टेबल, but you need to understand how to draw this isomers. When ligands are bidentate and unsymmetrical and monodentate type, last case में सारे के सारे bidentate symmetrical थे. यहाँ पे जो bidentate ligands आएंगे basically they are asymmetrical, they are represented by AB. So these are the possibility. MAB3, all three are bidentate ligands, then two bidentate, two monodentate ligands. So these are the different possibility. So again इसमें भी कुछ 8 cases हैं. सिमिलरली जो लास्ट वाला ए था उसको हमने ए बी से रिप्लेस किया है यहाँ पर. बट बिकॉज ऑफ असिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर वेरी वी कैन से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट केस. और यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल आइसोमर इंक्रीज होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर्स इंक्रीज होंगे बिकॉज वी डोंट गेट एनी लॉट ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हमें लास्ट केस में मिली थी, अब वो नहीं मिल पाएगी इस केस में. नाउ सी सम एग्जाम्पल फ्रॉम दिस टेबल. First example, MA2B2C2. When three types of ligands are present, all are monodentate ligands. So first table में एक केस हो जाएगा. क्लियर? इसमें हम देखते हैं कैसे हमें जज करना है. So in this case, 2A are present at 90 degree. 2B are present at 90 degree, 2C are present at 90 degree. First possibility आ गई. All A, B and C are basically in cis position. They are at 90 degree. हमें जनरली एंगल से जज करना होता है. एंगल से हम इजीली समझ पाएंगे, अदरवाइज ऑल 6 पोजिशंस आर आइडेंटिकल. हमने उसकी पोजिशन चेंज करके ऑब्जर्व करने की कोशिश की तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है. सेकेंड केस में अब हमने क्या किया, सभी को ट्रांस पे रख दिया. फर्स्ट में A, B, B, C, C they are at 90 degree. A 180 डिग्री, BB 180 डिग्री, CC 180 डिग्री. ये कुछ कर दिया हमने इस केस में. सो बेसिकली ऑल आर एट 180 डिग्री इन सेकंड केस, ट्रांस विथ रिस्पेक्ट टू ऑल. थर्ड केस, A को हमने रखा ट्रांस पोजिशन पे, B और C को रखा है हमने सिस पोजिशन पे 90 डिग्री पे. सो इट इज़ ट्रांस ओनली विथ रिस्पेक्ट टू A. सिमिलरली जैसे ए के रिस्पेक्ट में ट्रांस आया है, फिर बी के रिस्पेक्ट में ट्रांस, फिर सी के रिस्पेक्ट में ट्रांस, ऐसा कुछ आया है. तो जो थॉट प्रोसेसिंग है कैसे हमें कैलकुलेट करना है, बेसिकली हमने सबसे पहले सभी को सिस रखा, फिर सभी को ट्रांस रखा और उसके बाद फिर एक को ट्रांस रखकर अरेंज करते चले गए. फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव. व्हेन ऑल आर इन सिस पोजिशन देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया. बचे हुए जितने भी केसेस हैं दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज इन दिस केस एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लिगेंड्स आर प्रेजेंट एट ट्रांस पोजिशन. तो जब वो ट्रांस पोजिशन पे होंगे, लाइक इन द सेकंड केस ऑल आर ट्रांस, यहाँ पे A ट्रांस, यहाँ पे B ट्रांस, यहाँ पे C ट्रांस. सो जो ट्रांस पोजिशन के बीच वाला प्लेन है दैट प्लेन विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री. लाइक इन द थर्ड केस द प्लेन इन विच 2B and 2C are present, that is a plane of symmetry. Here 2A and 2C are present, that is a plane of symmetry. तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री में काउंट हो जाएंगे. यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कुछ ये हो जाएगा. सो इन फर्स्ट वी डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, अदरवाइज इन ऑल द केसेस वी हैव एटलीस्ट वन प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो दे आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. सेकेंड केस फॉर MAA A2 BC, here one monodentate ligand, one bidentate ligand is present, symmetric bidentate ligand, and two
A are present, which is monodentate ligand, and three different type of monodentate ligands are present. A, two types of A, and B and C. ये इस स्ट्रक्चर के लिए हम देखते हैं, इस फॉर्मूले के लिए. Now see, first of all, any bidentate ligand we cannot place them in this manner. If we have such kind of a structure, octahedral structure, we cannot place bidentate ligand at 180 degree. हमने एक A को यहाँ रखा, दूसरे A को यहाँ रखा, हम उसको ऐसे प्लेस नहीं कर सकते हैं जैसा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, बिकॉज इट हैज़ वेरी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज़ नॉट स्टेबल. तो ये वाला केस हमें कभी भी काउंट नहीं करना है. नाउ इन दिस केस वी नीड टू फिक्स द पोजिशन ऑफ एनी वन. चलो हमने ए की पोजिशन फिक्स कर दी, हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं. क्लियर? हर केस में हमने ए की पोजिशन फिक्स रखी, बिकॉज वी चेंज दिस अगेन दे हैव टू प्लेस एट 90 डिग्री. यदि हमें उससे 90 पे ही रखना है तो फिर चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. अब हमने ए को, स्मॉल ए को ट्रांस पे रख दिया, बी सी को यहाँ पे रखा. अब हमें ऐसे क्रॉस चेक करना है, क्या हम ये जो बी और सी हैं इसकी पोजीशन को चेंज करके, एक्सचेंज करके, क्या हमारे पास कोई नया पॉसिबिलिटी आ रही है? क्या हम इसको चेंज करेंगे तो कोई नई पॉसिबिलिटी आएगी? नहीं आएगी. बी एट 180 डिग्री विद द कैपिटल ए, सी एट 180 डिग्री विद द कैपिटल ए. यदि हम उनकी पोजीशन को चेंज भी कर देंगे तब भी वही सीन होगा. बी यहाँ पे भी आएगा तब भी वो 180 डिग्री पे होगा. ए के साथ सी यहाँ पे आएगा तब भी वो 180 डिग्री पर होगा. सो देयर विल बी नो चेंज इन दैट सिनारियो. नाउ सेकंड केस, हमने अब पहले ए को रखा था 180 डिग्री पे. नाउ ए आर प्रेजेंट, स्मॉल ए आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री. क्लियर? हमने बी और सी को यहाँ पे कुछ रख दिया. अब जो हमने बी और सी को यहाँ पे रखा, क्या बी और सी को इंटरचेंज करके हमें कुछ मिलेगा? डिफरेंट केस. स्मॉल बी इन फ्रंट ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल सी इन फ्रंट ऑफ स्मॉल ए. सो डेफिनेटली इनको चेंज करके हमें डिफरेंट केस मिल जाएगा. सो हम स्मॉल बी और सी को इंटरचेंज कर देंगे, कीपिंग सेम पोजिशन ऑफ ए बाइडेंटेड लिगेंड. फिर हमने जो इन दोनों की पोजिशन थी इसको भी फिक्स किया और इनको एक्सचेंज करके देख रहे हैं. तो इनको चेंज करके देखा, थर्ड केस आ गया हमारे पास कुछ ये वाला. नाउ फोर्थ केस, इन फोर्थ केस अगेन वी डोंट नीड टू चेंज द पोजिशन ऑफ दिस बाइडेंटेड लिगेंड, ये तो हमेशा ही वहीं रहेगा. अब हमने ए को यहाँ पर बेसिकली ये दोनों ए, दिस वन ऑफ द ए इज प्रेजेंट एट 90 डिग्री विथ बोथ ए. जो दोनों कैपिटल ए हैं उससे ये 90 डिग्री पर है. सो हमने अब क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ से सी की पोजीशन पे लेके आ गए. सो दोनों ए अब एक एक कैपिटल ए से एटलीस्ट 180 डिग्री पर आ रहे हैं इन द लास्ट केस. सो लास्ट पॉसिबिलिटी में बोथ स्मॉल ए आर एट 180 डिग्री विद द कैपिटल ए. कुछ ऐसा आ गया. क्या यहाँ पे बी और सी को इंटरचेंज करने से हमें कुछ इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बी ऊपर जाएगा, बी नीचे आएगा, सी ऊपर चला जाएगा. देयर विल बी नो डिफरेंस. सारे एंगल्स बी के और सी के सबके साथ उतने ही रहेंगे. सो दिस ऑल आर द पॉसिबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. अब हम देखते हैं इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा होगा. फर्स्ट वन, ए प्रेजेंट एट 180 डिग्री. जब भी कुछ दो सेम लिगेंड 180 डिग्री पे तो डेफिनेटली ट्रांसपोजिशन पे बीच वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया. इन दिस केस वी डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. ये भी सिस पोजिशन पे आ गए, ये तो सिस पोजिशन पे होना ही था. सो देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री. क्लियर? सेम थिंग द थर्ड केस, सिस पोजिशन, we don't have any plane of symmetry. In the last case we have plane of symmetry, the plane which is passing from here. यहाँ पे भी यदि हम देखेंगे तो ये भी सिस पोजिशन पे, ये भी सिस पोजिशन पे, स्टिल वी आर गेटिंग द प्लेन ऑफ सिमेट्री. वो प्लेन जो कि यहाँ से पास हो रहा है इस बी से, देन सेंटर, देन सी, देन दिस सेंटर, बेसिकली ऐसा कुछ प्लेन जो इस पूरे पार्ट को डिवाइड कर रहा है कैपिटल ए और स्मॉल ए को इस मैनर में, ये वाला प्लेन. सो ये ए इसका मिरर इमेज, ये कैपिटल ए इसका मिरर इमेज. इवन हमें ये भी ऑब्जर्व करना होता है कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बीच में आ रहे हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स में, ये जो मॉलिक्यूल बीच में इनका भी मिरर इमेज मिलेगा एज दिस इज सिमेट्रिक. सो दिस प्लेन विल बी द प्लेन ऑफ सिमेट्री. दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. So 2 of them are optically inactive and 2 of them are optically active. Total 4 geometrical isomers, 2 optical active isomers जिनकी mirror image कुछ हो जाएगी,
टोटल 6 स्टीरियो आइसोमर्स होंगे इस केस में. Now the third case, MAbA2B2. MAbA2B2, one bidentate asymmetric ligand and two different types of monodentate ligand A2B2. So if we see AB, हमने AB की पोजीशन को यहाँ पे चेंज नहीं किया है, इसकी पोजीशन को चेंज करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा. विल गेट द सिमिलर केसेस. सो हर केस में हमने AB को फिक्स रख दिया. अब हम आए स्मॉल ए पर आते हैं. दे आर एट 90 डिग्री. सेकेंड केस स्मॉल ए 90 डिग्री पर है और स्मॉल बी सिस पोजिशन 90 डिग्री पर है. ये 180 पर, सॉरी ए 180 पर ट्रांसपोजिशन पर और स्मॉल बी 90 पर. हमने एक ए को बी से चेंज कर दिया. इफ वी चेंज वन ऑफ द पोजिशन, एक ए को बी से एक्सचेंज करेंगे तो इस केस में ए 90 डिग्री पे आ गए, बी 90 डिग्री पे आ गए, सिस पोजिशन पे आ गए. क्लियर. अच्छा, अब इसी में एक और पॉसिबिलिटी आ सकती है. इन फ्रंट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल ए इज प्रेजेंट, इन फ्रंट ऑफ कैपिटल ए स्मॉल बी इज प्रेजेंट. सो कैपिटल ए कैपिटल बी के सामने क्या प्रेजेंट है, वी कैन ऑल्सो एक्सचेंज देम. यदि हम इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे इस ए बी को, तब हमें एक नया केस मिल जाएगा. यहाँ पे बी और ए आ गया. इन फ्रंट ऑफ कैपिटल बी स्मॉल बी इज प्रेजेंट. सो दिस इज अ डिफरेंट केस फ्रॉम द सेकेंड वन. नाउ द लास्ट केस, वी कैन पुट बी इन ट्रांसपोजिशन. A transposition, B transposition, and in between A and B are at cis position. Cis position, ये B का cis position, ये इस केस में this are the basically cis position. ये भी cis position पे और B भी cis position पे 90 डिग्री पर. Now out of this 4 geometrical isomers, first one is optically inactive as small a is present at 180 डिग्री. सो जो प्लेन बीच वाला प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. लास्ट वन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एज स्मॉल बी आर एट ट्रांसपोजिशन 180 डिग्री. सो बीच वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा. नाउ इन दिस टू केस वी डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव. 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, टोटल 6 हो जाएंगे यहाँ पर. Next case, Ma3B3. Now in this Ma3B3, जैसा cis trans होता है, we can define facial and meridonial. See, 2 possibility are there, 2 geometrical isomers are there and both will be optically inactive. So geometrical isomers में जब ये A सारे के सारे A एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, all B are at 90 डिग्री with each other. फर्स्ट केस. हमने सेकंड केस में क्या किया, इस दोनों ए को, 2 ए को 180 पे रखा, 2 बी को 180 पे रखा, ऐसा कुछ कर दिया है. सो दिस 2 आर द पॉसिबिलिटी. इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं आएगी. नाउ द फर्स्ट केस इज कॉल्ड फेशियल वन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय FAC एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड मेरिडोनियल. अब फेशियल का क्या मतलब हुआ, इन दिस ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बेसिकली वी हैव 8 फेसेस. फर्स्ट फेस कुछ ये होगा, सेकंड ट्रायंगुलर फेस ये होगा एंड थर्ड ट्रायंगुलर फेस फ्रंट में, फोर्थ राइट साइड में, बैक साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड, राइट साइड. दिस आर द 4 ट्रायंगुलर फेसेस. सिमिलरली 4 ट्रायंगुलर फेसेस नीचे होंगे जब हम इन सबको कनेक्ट करेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. ऑक्टा मीन्स 8 ट्रायंगुलर फेसेस के कॉम्बिनेशन से बनाए हैं. अब इस फर्स्ट केस में ऑल ए आर प्रेजेंट ऑन द वन ट्राइंगुलर फेस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फेशियल. ऑल बी आर प्रेजेंट एट वन ट्राइंगुलर फेस, जो इस ट्राइंगुलर फेस पे हैं. सो वी कॉल इट फेशियल. सारे बी एक ही फेस पर हैं एक ट्राइंगुलर के, और सारे एक ट्राइंगुलर फेस पर हैं. इन दिस केस when A and B are present at 180 degree, definitely they cannot be present on the same triangular face. So we call it meridonial. MER से represent होगा ये. Some more examples. Ma2B2CD, in which 6 possible geometrical isomers are there and 2 of them are optically active. 6 plus 2, 8. So OA denotes optical active isomers. These are the possibility for Ma2B2CD. You can cross check this.
सेकेंड एंड थर्ड आर ऑप्टिकली एक्टिव, जहाँ पे OA लिखा हुआ है. OA दैट मीन्स ऑप्टिकली एक्टिव. OA for optically active, OI for optically inactive. Next example, MAA3 when all three are bidentate symmetric ligands. So now in this case we can have only one possibility, one geometrical isomers. कुछ हमने A को यहाँ पे रखा और इस A को यहाँ पर, ये कुछ आ गया. Clear? Now if you change position of any A, you will get the similar arrangement as all A are identicals. तो इसमें एक ही possibility आएगी. And which is optically active, इसका यदि हम mirror image cross check करेंगे, it is non superimposable. We don't get any plane of symmetry. हाँ, यदि हम इसको कभी कभी ऐसे कुछ ऑब्जर्व करने जाएं कि इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल रहा है, ये जो बीच वाला प्लेन है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, या कोई भी एक प्लेन को हम लें. ना यू कैन ऑब्जर्व हियर, हमें सिर्फ ऐसा नहीं कि इन ए को चेक करना है, हमें जो बीच में मॉलिक्यूल है दे आर बेसिकली सम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट हियर इन बिटवीन ऑल्सो. यदि हम एग्जाम्पल लें इथाइलिन डायमीन का NH2 देन CH2 देन NH2, सो मैं इन मॉलिक्यूल का भी मिरर इमेज क्रॉस चेक करना होगा. सो जहाँ भी बाइडेंटेड लिगेंड्स आएंगे वी ऑल्सो नीड टू क्रॉस चेक देयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिटवीन टू डोनर साइड्स. So now here we don't get any mirror image for this because this is present, let's say back side, this is present in the front side. तो ये जब बैक साइड 3D में से विजुलाइज करोगे ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं आएंगे. वी टेक दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री, सो दे विल नॉट बी मिरर इमेज. ये पीछे की तरफ प्रेजेंट होगा, ये फ्रंट की तरफ प्रेजेंट होगा. सो वी डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, वी हैव नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. सो वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, उसका मिरर इमेज एक हो गया, टोटल 2 हो गए. नेक्स्ट केस, इसी के करस्पॉन्डिंग यदि हम MAB3 लेंगे जहाँ पे तीनों बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं एंड दे आर डिफरेंट. सो इन दिस थ्री बेसिकली दे आर असिमेट्रिक बाइडेंटेड लिगेंड्स, नॉट डिफरेंट. सो इन दिस केस वी कैन हैव 2 पॉसिबल जियोमेट्रिकल आइसोमर्स. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी इसलिए आएंगी क्योंकि ए दोनों एंड जो डोनर साइड है दे आर द डिफरेंट साइड्स. फर्स्ट केस B is present at 180 degree, so one of the B in front of 1A, B is present in front of second A is present. So A के सामने A, B के सामने B, A के सामने B, ऐसा कुछ केस है. Now we can have one more possibility in which all A are present in front of B. हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज किया, सिर्फ इस लिगेंड को हमने इंटरचेंज कर दिया, इनके डोनर साइड को चेंज कर दिया. सो B यहाँ पे आ गया, A यहाँ पे आ गया. नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन फ्रंट ऑफ ईच A ओनली B इज प्रेजेंट, विच इज द डिफरेंट केस फ्रॉम द फर्स्ट वन. एंड बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव एज वी हैड सीन इन द लास्ट केस. इसमें भी कोई मिरर इमेज नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बिटवीन. वी डोंट हैव एनी मिरर इमेज, सॉरी वी डोंट हैव एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री. इनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे. बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव. सो 2 जियोमेट्रिकल आइसोमर जो है ड्रॉ किए हैं, इनका मिरर इमेज मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पर, और उनके 2 मिरर इमेज होंगे विच इज 2 + 2 4. Both are optically active as there is no plane of symmetry. One more case, MAB2AB, 2 asymmetric bidentate ligands and 2 monodentate ligands are present. In this case we have 6 geometrical isomers. Again you don't need to memorize 6 present होंगे, हमें ड्रॉ करते आना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि एग्जाम में उनसे नंबर को फाइंड आउट कर सकें. So 6 geometrical isomers are present, out of which 5 are optically active. Now see कैसे इसमें हम ड्रॉ करेंगे, क्या थॉट प्रोसेसिंग होगा. सबसे पहले हमने इस AB की पोजीशन को फिक्स किया, यहाँ पे रखा, और एक काम करते हैं, हम इस AB की पोजीशन को फिक्स करते हैं. इस AB की पोजीशन को हमने फिक्स किया.
Now we can put AB here, a small b here. फर्स्ट पॉसिबिलिटी आ गई. इसकी पोजीशन को फिक्स रखा. हमने क्या किया, ये क्रॉस चेक किया क्या स्मॉल बी को चेंज करने से कोई डिफरेंस आ रहा है, नहीं आएगा, बिकॉज दे प्रेजेंटेड 180 डिग्री इन दैट केस. यदि उनको एक्सचेंज करते हैं उनकी पोजीशन को. अब हमने फिर सेकंड केस में जो कैपिटल ए कैपिटल बी थे इस तरफ उनको एक्सचेंज कर दिया. सो यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ बी वी आर गेटिंग बी, इन फ्रंट ऑफ ए वी आर गेटिंग ए. यहाँ पे ए के सामने बी था, वहाँ पे बी के सामने बी, ए के सामने ए आ रहा है सेकंड केस में. सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई. नाउ इन थर्ड पॉसिबिलिटी हमने इसकी पोजीशन को अभी भी कुछ चेंज नहीं किया है. हमने अब इन ए बी की पोजीशन को चेंज कर दिया, यहाँ से इसको यहाँ पे कर दिया. सो ए बी कुछ यहाँ पे आ गया, स्मॉल ए इन फ्रंट ऑफ कैपिटल बी, स्मॉल बी इन फ्रंट ऑफ कैपिटल ए. इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे, डेफिनेटली वी गेट वन मोर केस. सो फोर्थ केस में हम इन दोनों को एक्सचेंज कर देते हैं. फोर्थ केस में हमने क्या किया, स्मॉल ए स्मॉल बी की पोजीशन को चेंज कर दिया. सो थर्ड केस से एक और डिफरेंट केस मिल गया हमें यहाँ पर. नाउ ये जो ए बी की पोजीशन थी अब हम इसको चेंज कर देते हैं. ये बी और ए को हमने ऐसा ही रखा है. इस ए बी की पोजीशन को हमने एक्सचेंज कर दिया. इसको एक्सचेंज करने से हुआ, सबसे पहले कैपिटल बी के सामने यहाँ पे कैपिटल ए था. नाउ इन कैपिटल बी वी हैव कैपिटल बी इन फ्रंट ऑफ कैपिटल 180 डिग्री. सो ए कैपिटल ए के सामने, स्मॉल बी कैपिटल ए के सामने. इफ़ बोथ आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ कैपिटल ए, उनकी पोजीशन को इंटरचेंज भी करेंगे, वी डोंट गेट एनी अदर थिंग, सेम ही हो जाएगा वो. इन द लास्ट केस बेसिकली हमने ये देखा, इस पोजीशन में जो हमने ए बी को रखा है, बी के सामने ए, बी के सामने बी. नाउ वन मोर केस इज रिमेनिंग, ए के सामने ए. सो ए आर प्रेजेंट, कैपिटल ए आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री. सो जब कैपिटल ए 180 डिग्री पे होंगे उसके लिए हमें जो चेंज करना होगा वो ये करना होगा, यहाँ से जब हम यहाँ पे गए सब कुछ हमने एज इट इज़ रखा, इन ए बी को अब चेंज किया है. सो सिर्फ लास्ट केस में जाके इसको चेंज करके हमें कुछ एक नया ऑप्शन मिल रहा है. अदरवाइज इन एनी केस वी डोंट गेट एनी अदर ऑप्शन यदि हम इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे तो. सो दिस 6 आर द पॉसिबिलिटी. इसमें सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव है. यू कैन क्रॉस चेक, यू डोंट गेट एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री except first case in which we are getting plane of symmetry. फर्स्ट केस में हमें ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है. बेसिकली द प्लेन विच इज पासिंग फ्रॉम हियर, ये वाला प्लेन. सो दिस प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. इस बी का मिरर इमेज ये बी, इस कैपिटल ए का मिरर इमेज ये, और यहाँ पे जो बीच में मॉलिक्यूल है उनका भी मिरर इमेज मिल रहा है. द वर्टिकल plane which is passing from here is the plane of symmetry. So only first one is optically inactive and all other remainings are optically active. Total 6 geometrical isomers and 5 optically active isomers. 6 plus 5 total 11 stereo isomers.